nation are the issues regarding whether it's Lutyens scam, or it is Augusta Westland, or it is Rolls-Royce engine scam, or it is the other land scams which are being unearthed, and God knows which all scams are round the corner, and only the other side knows what all is their involvement. And to take away the light from these scams and these acts is what we witnessed yesterday, where a non-issue, an inconsequential instance of administrative implementation of law and order was blown out of proportion. And everyone knows, once the code of conduct comes into existence, the elections are announced. Not just one party, but every party, every leader is bound by the mandate and demands imposed on all of us by the Election Commission, and administration works directly under the Election Commission. And let me remind you that in 2004, Mr. Advani was stopped from making a speech post 10 o'clock because the time was 10 p.m. and he in a very dignified manner abided by the regulation and said whether the flight is delayed or whatever be the cause. Now that the mandate of the Election Commission has come and we need to abide, I will abide by whatever the law and order demands. And he went away without giving a particular speech beyond 10 p.m. Now this is law of the land. And if the so-called Aam Aadmis who believe that law is not to be observed but to be abused, and we have seen how they have abused the law and order in Delhi, and how we have seen the manner in which the functioning has happened. And yesterday's incident goes to show beyond doubt that far more deeper games are being played in this country. And the latest deals which have been unearthed from either within the country or outside the country, whether it's UK or it's Italy or it's Sweden, throughout we have seen that these scams are being unearthed due to the transparent mechanism and systems which work in those countries. And then the matters reach us, and by the time matters reach us, the functioning of our bureaucracy is directly under the same government, and the investigations are sabotaged more than investigations are conducted. And in this regard, I would like to say that this is basically a diversionary tactic practiced by the Congress party to take away the focus from the issues faced by the country, which can mean from the batteries which were required by the naval squad, whether it's the guns or it's the submarine. We have seen depletion of Indian power across, and it is in this context, if I have to go back and ask, that there was another revealing press conference which was done by one of their founder members called Mr. Ashwini Kumar Upadhyay, and he seems to be heading the legal wing of that party and has been with the party for more than 7 years. He gave a press statement yesterday suggesting that the CIA funding and several other things are involved in the functioning of Aam Aadmi Party, and he's no vote seeker but a patriot. And some 50 to 300 people, the core member team to other workers, are disillusioned with this aspect because they can fight against many issues, but when it comes to patriotism and it comes to nationality, they can't work against the country itself, and that is the content of the press release. To take away the light from this particular aspect, this has been done. And another Admiral Ramdas, against whom also there are several details which are pending, and his daughter happens to head the South Asia network of the Ford Foundation, and several such, the entire family is busy with Aam Aadmi Party and is a worker. So a very, very direct connect and some documents. My question is that why has the government of India not found time
to track these activities, and how have these activities been possible in this country, and how has a party which has recently enrolled, earlier they enrolled Binayak Sen, which is, I mean, a known Maoist. The legal luminary is a known separatist. The other gentleman happens to be Sabyasachi Panda, on whose head there is a bounty of 5 lakh. So this transparent party should in fact hand over that Sabyasachi Panda to the police and collect 5 lakh for their party fund. And under these circumstances, it is very, very evident that this is a latest goon squad hired by the Congress to not allow the real issues to come to the forefront and be faced by those issues. And repeatedly, it's been portrayed that they are law-abiding, normal citizen of the country, but whereas they want a special treatment as an income tax officer, if at all he worked as an income tax officer, it seems the gentleman actually got the perks of an income tax officer, was busy promoting his career. But had he worked on the ground, he would have known, because even these people are drafted for the election duties. So he would have known that when the Election Commission issues a notification, then that notification means the administration works directly under the Election Commission. And every police and every other authority has to report everything to the Election Commission. And if under the Election Commission you have to not only inform your movement, but you have to seek permission from the RO of that constituency. Without doing that, you're carrying a convoy of some 200 odd people, carrying the symbol of your party which you have taken, and it is not even a recognized national party. You go around doing your nautanki and you expect law not to take its course. And unfortunately, under these circumstances, first you cry foul by saying, I have been arrested. Then you say, I have been detained. Then SMSs are sent. And all this is happening in a very, very planned fashion. And the planning goes to the extent that as per the latest news which we have, some information has come that they are planning a protest with their own people outside their own office with some BJP flags. So this is the manner in which these saboteurs can function, a typical Maoist strategy. That you get people in police uniform to attack the villager, work around it, and similarly they are functioning, the urban Maoists. They are Maoists in muftis. And that is what the latest plan is. Sending SMSs that we are likely to be attacked, and whereas our leaders have constantly maintained that please maintain peace, because this is exactly the plan, that be the agent provocateur, act and force us to act and create a ruckus. Now, under these circumstances, I think country needs to take a call whether we can stay as a country under a democratic constitutional setup, or we want India to be made into a Lebanon or Syria or whatever. And Qatar will be funding, some such corporates will be funding such movements. So I think high time India takes a call, and this is not just a question of BJP or election, but far deeper concerns which we all need to face as India as a country. अच्छा, कल जिस प्रकार का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हुआ, वो प्रदर्शन कम और तोड़फोड़ ज़्यादा थी। और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि एक ऐसे व्यक्ति ने उसको लीड किया था जो आप ही के परिवार से पहले निकले हैं, और दीवार फांद के दूसरे के घर में घुस जाना, मुझे नहीं लगता कि कोई जर्नलिस्ट इस तरीके की हरकतें करते हैं। साथ में दूसरी महिला, उनके खिलाफ जो सीडी स्टिंग ऑपरेशन, जो सबको आपको लगातार कार्रवाई करने का आदेश देते हैं और समझाते हैं कैसे स्टिंग करना चाहिए, उनके खुद के खिलाफ जब स्टिंग पड़ा है, उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई मुझे नहीं मालूम। और ऐसे में कुछ एक विषय हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, और उसमें हमें समझना होगा कि ये एक गुंडा स्क्वाड कांग्रेस पार्टी ने लेटेस्ट तरीके से हायर किया है,
जिसके द्वारा वो जो है अपने जो भ्रष्टाचार के किस्से हैं उनको छुपाने की और भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो रोल्स रॉयस के इंजन का किस्सा हो, चाहे वो ऑगस्टा वेस्टलैंड की डील हो, चाहे वो जो पनडुब्बियां थी उनकी बैटरी का किस्सा हो, लुटियन जोन का स्कैम हो, नेशनल हेरल्ड का स्कैम हो, और ऐसे तमाम स्कैम्स जो अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं। इन सब से भ्रमित करने के लिए इन लोगों को रखा गया है। ये ना तो भारतीय जनता पार्टी के बराबर हैं और मैच हैं, और ना ही ये श्री नरेंद्र मोदी को मुकाबला दे सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन इस बीच चाहे इनके फंड का विषय हो, चाहे तमाम इनके इतिहास का विषय हो, उन सब पे प्रश्नात्मक चिन्ह लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो एक गैर संवैधानिक एनजीओ है श्रीमती सोनिया गांधी जी की, जिसको नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का नाम दिया गया है, उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और ये सब उससे जुड़े हुए व्यक्ति आप इतिहास के रूप में इनको देख सकते हैं और पा भी सकते हैं। और आज पता चलता है कि जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है कांग्रेस पार्टी का, वो इस सब साजिश में लगा हुआ है। और ऐसे में जो कल की घटना है उससे भी कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं रेवेन्यू सर्विस में रह चुका हूँ, तो इलेक्शन कमीशन पुलिस को, आईएएस को, तमाम लोगों को अपने ड्यूटीज़ में लगाता है। और अगर किसी ने बाकायदा डिपार्टमेंट में काम किया हो तो रेवेन्यू सर्विसेज वालों को भी मौका मिलता है इलेक्शन कमीशन के साथ काम करने का। इन्होंने अगर फोर्ड फाउंडेशन और इन तमाम चीज़ों का और जो पर्क्स मिलते हैं उनका फ़ायदा नहीं उठाया होता, तो इनको बेहतरीन तौर पे पता होता कि इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली क्या है और किस तरीके से काम किया जाता है। और उस कार्यप्रणाली में जब चुनाव घोषित हो जाते हैं तो चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद जो प्रशासन है वो तमाम प्रशासन चुनाव अधिकारी के हाथ में चला जाता है। और कहीं पर भी अगर आप एक जत्था लेकर या घूमते हैं, रैलीज करते हैं, लोगों से मिलते हैं या कुछ है, तो उस इलाके के आपको आरओ को इन्फॉर्म करना होता है और उनकी परमिशन की भी आवश्यकता होती है। तो जब ऐसे जाया जा रहा है वहाँ पर अगर आपसे इंक्वायरी करने के लिए पुलिस की व्यवस्था और तमाम लोग पूछताछ करें, तो वो कानून व्यवस्था हर नागरिक के लिए वो व्यवस्था है। आप कोई खास नहीं है कि आप कानून से ऊपर हैं कि कानून आप पे लागू नहीं होता। देश का कानून हर व्यक्ति पे लागू होता है, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। आज लड़ाई इसी बात की है कि कौन वो लोग हैं जो कि देश के कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं। और वही रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है ये है कि एक कानून, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक कानून के आगे सब लोग बराबर हैं। तो ये इतने खास हो गए कि कानून का महत्व नहीं समझेंगे, ये इतने खास हो गए कि ये उस कानून के दायरे में नहीं आएंगे, ये इतने खास हो गए कि ये कानून का उल्लंघन करेंगे। और उल्लंघन करने के बाद कोई इनसे पूछताछ भी नहीं करेगा कि आपने उल्लंघन क्या किया। दो विषय समझ आते हैं कि या तो इन्हें कानून की वाकई जानकारी नहीं थी, और जो समय ये कहते हैं कि ये रेवेन्यू सर्विस में काम करते थे, सिवाय इन्होंने अपने निजी स्वार्थ को बढ़ाने के अलावा वो समय कार्य नहीं किया। या दूसरा ये कि इस समय का जानबूझकर दुरुपयोग किया और इसको उचित मौका समझकर इसकी मीडिया कवरेज के तहत इसको खबर बनाई जाए, ऐसे जानबूझ के किया गया। दोनों में से कोई एक पक्षी तथ्य होगा। और साथ ही सब लोगों को एक प्लान तरीके से एसएमएस डाला जाता है। और उसी सिलसिले में जो विषय आज देश के सामने हैं वो पनडुब्बी दुर्घटना से लेके अगस्ता वेस्टलैंड और जो लोग जिनके नाम सामने आए, रोल्स रॉयस का इंजन जो हवाई जहाज़ के खरीदारी में हुआ उसमें बेईमानी हुई, और लुटियन स्कैम के नाम से जो ज़मीन गई वो एक और बड़ा जो है स्कैम घोटाला निकला है। ऐसे ही नेशनल हेरल्ड का घोटाला निकला है। अब पता नहीं और कौन कौन से घोटाले आसपास घूम रहे हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं है, मगर उन लोगों को ज़रूर मालूम होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या घोटाले किए हैं। तो देश की जनता का ध्यान उन सब चीज़ों से हटाया जाए और किस तरीके से एक बेतुकी खबर को खबर बनाया जाए, ये इन लोगों का आज काम रह गया है। दीवार फांदी जाती है, पथराव किया जाता है और हर वो हरकत की जाती है जिसके तहत कानून व्यवस्था का उल्लंघन और भंग किया जाए। ये किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता। और हमारे अध्यक्ष जी ने और आज और तमाम लोगों ने भी ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी
किसी भी विरोध या इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि यह खुद ही उजागर हो रहा है कि कितनी बड़ी साजिश इस देश पे चल रही है। और वो साजिश जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं कर रही, मगर पूरे देश को टारगेट कर रही है। वापस हिंदुस्तान को एक इस तरीके से एक उद्यमी देश ना बनाने की बजाय सीरिया या लेबनान बनाने की कोशिश है, जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और वहीं कहीं ना कहीं सोचने और समझने का विषय है। और ये कल की जो प्रक्रिया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से काम किया गया। कल इनके एक पूर्व जो कोर मेंबर थे, सदस्य थे, जिनका नाम श्री अश्विनी उपाध्याय है, वो इनकी कानूनी जो इनकी संस्था, जो इनकी कमेटी है, उसमें भी वो अध्यक्षता करते रहे हैं। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सीआईए से बहुत गहरे संबंध हैं इस पार्टी के, और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो कहीं ना कहीं मुद्दा जो है इनकी फंडिंग से लेकर एडमिरल रामदास, उनका परिवार जिसमें उनकी बेटी फोर्ड फाउंडेशन साउथ एशिया की हेड है, वो सब विषय बनने थे। उस विषय को भ्रमित करने के लिए ये सब जो कल शाम में रात में हुआ है वो कर्म किया गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। पहले ये एक मिनट ये पूछ जी। बिल्कुल सही आपने पकड़ा इस विषय को, क्योंकि जो जो बहुत लोगों का सवाल है ये। देखिए, खुद ही जो व्यक्ति कहे कि जब पुलिस कहे कि आपके पास परमिशन है, तो वो व्यक्ति ये कहने की बजाय कि भाई साहब मुझे मालूम नहीं था अब कोई परमिशन की ज़रूरत होती है, या मैंने परमिशन नहीं ली लेकिन अब आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, इसकी बजाय वो कहे कि नहीं है परमिशन और तुम अरेस्ट करो। इसको आप क्या कहेंगे कि चैलेंज करना? और इसको हम कहते हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, और एक जो खबर लायक मुद्दा नहीं है उसको खबर बनाने के लिए। क्योंकि शांतिपूर्वक अगर ये गुजरात जाकर वापस आ जाते तो वो उनकी यात्रा विफल हो जाती। जिनको खाना खाना, बैठना, नहाना, सोना, वो सबको खबर बनाने का आदत पड़ जाए तो उनको शायद ये यात्रा का विफल हो जाना जो है वो बहुत दुखदाई होता। और इसी तरीके से ये साजिश की गई और खुद को एक मार्टर घोषित करवाने के लिए, एक शहीद बनाने की पूरी कोशिश थी। और कल दूसरी शहादत भी हमने देखी। तो मैं तो लगातार कहती हूँ कि इस देश ने 2 शहादतें देखी हैं। पहली शहादत जो है वो हमने 2004 में देखी थी, और दूसरी शहादत हमने देखी है अब जब मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा दिया, लेकिन एमएलए से नहीं दिया। तो ये इस तरीके की शहादतों का जो सिलसिला है वो देश को ख़त्म करना होगा। नहीं, हम तो लगातार कह ही रहे हैं कि जहाँ तक पुलिस का विषय है, पुलिस पूरी तरीके से तहकीकात करे। लेकिन आज पुलिस क्योंकि इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर काम कर रही है, तो आज हम अपना जो वक्तव्य है वो इलेक्शन कमीशन को दे के आए हैं। प्रूफ के तौर पर सीडीज भी दे के आए हैं, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से कोई इस पे ज़रूर टिप्पणी आएगी, उसका इंतज़ार है। ये कांग्रेस द्वारा प्रयोजित था, और ये आप इसमें से इसके ऊपर फोकस ना रख के कांग्रेस पर फोकस रखें तो बेहतर होगा। क्योंकि ना तो ये प्रदर्शन था, बट एक प्रयोजित कार्यक्रम के तहत ये सब हुआ। No, they should be derecognized is one part. There are many issues regarding derecognition, and the manner in which their election symbol was also granted, that was under a notification. I mean, there are several issues which are pending, which of course we will be dealing with election commission. एक मिनट हरियाणा, सुमित पांडे जी। No, no.
The parties, party is yet to decide on those issues. चोरी करेगा ये देखिए, पहले तो प्रशांत भूषण जी के खिलाफ एफआईआर कई पेंडिंग है, जिसमें वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया भी है, जो भारत के ही खिलाफ काम करते रहते हैं। उस व्यक्ति के बारे में कुछ ज़्यादा टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि वो कश्मीर के मुद्दे से लेकर तमाम ऐसे मुद्दों पर किस तरीके की भ्रमित राजनीति कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों पर मेरे को विश्वास नहीं है। आपको हो तो मेरे को जानकारी नहीं होगी। लेकिन 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 ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं, इससे ज्यादा भ्रमित कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो तथ्यों और तारीखों के साथ आपको बता रही हूं। तथ्य ये है कि 20 तारीख को श्रीमती सुनंदा पुष्कर की डेथ रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें कहा जाता है कि जहर द्वारा मृत्यु हुई। तो वहां पे सिलसिला चलना चाहिए था स्पेकुलेशन का, कि खुद खाया, किसी ने खिलाया, दवाई का ओवरडोज था, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट था, आईपीएल का कुछ और था, बहुत दुखी थी। उस तरीके की राजनीति चलनी चाहिए थी और वो बहस होनी चाहिए। तो जब 20 तारीख को वो आता है तो यहां पर हो जाता है धरना। अगला आता है 26 के पहले, जब आपकी सारी जितनी यहाँ पर सेना बल है वो सब खड़े हैं, आप 26 मना रहे हैं, तो दूसरी माओवादी राजनीति शुरू हो जाती है। जिस दिन जो है जो प्रश्न उठने चाहिए थे, वो उठना चाहिए था कि तेलंगाना में जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उनके बीच में मतभेद है। कांग्रेस अपने घर को इकट्ठा नहीं रख पाई, क्योंकि लगातार आप इस तरीके की बातें बीजेपी के बारे में लिखते हैं ना, कि एक नेता ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा। यहाँ तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही साथ नहीं है। तो उस दिन होता है धरना। तीसरा दिन ऑगस्टा वेस्टलैंड की चिट्ठी निकलती है इटली के अंदर, इटालियन कोर्ट के माफिक और प्रेस में। उस दिन होता है श्री अरुण जेटली जी के घर के बाहर धरना। चौथा, यहाँ पे अश्विनी जो है, अश्विनी उपाध्याय का निकलता है। और दूसरा, जिस तरीके से प्लानिंग चलती है कि उधर इलेक्शन अनाउंस होता है और यहाँ पे ये होता है, और होता है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना। मैं तो तथ्य के साथ बता सकती हूँ। मैं इस तरीके की रेटरिक में जो आपके सेपरेटिस्ट नेता हैं विश्वास नहीं रखती। मैं तथ्य लेकर बैठती हूँ और उससे बात करती हूँ। अरे, खुद को कुछ ही कहने का अधिकार है। मेरे से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? जी, विल टेक अ कॉल जी। ये तो प्रश्न, ये तो हम पार्टी निर्णय लेगी। ये तो कोई निर्णय अभी हुए नहीं, कुछ नहीं हुए, पहले ही स्पेकुलेशन चल रही है। जी, एक मिनट, आपका हो गया। जी जी जी, आपका हो गया। जी, अनामिका, 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 एक मिनट आते हैं रविंदर। 2 मिनट रुकिए प्लीज, अनामिका। जी जी जी, ये तो सिर्फ सीमा से अधिक नहीं, उन्होंने कुछ सांप्रदायिक शब्दों का इस्तेमाल किया, सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीति की, सीमा से अधिक खर्च किया। और उसके अलावा 6 करोड़ तो खाली रेडियो एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च हुआ है। वो तो बहुत सारे विषय हैं। और इनकी फंडिंग जो है वो सबसे अधिक जो है शक के दायरे में है। और उसमें ही मैंने तमाम नाम गिनवाए हैं। तो बोलिए, भारत देश में से अगर कोई मरा है तो वो हमारे ही घर का है, क्योंकि ये परिवार बहुत बड़ा है और जिसका नाम भारत है। और उस हिंदुस्तान के हर नागरिक में अगर कोई होता है, किसी के साथ भी कोई दुर्घटना होती है, तो उस पर प्रश्न लगाने का अधिकार हम सबका है। मैं आपको रविंद्र जी बोल चुकी हूँ, सॉरी सॉरी, अखिलेश जी, माफी चाहती हूँ। उस पर मेरा कोई अभी टिप्पणी नहीं है। जब जो कुछ निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। नहीं नहीं, अरे,
No, no. Without them, third front doesn't exist. I'm glad, Aditi, you've put that, and I'm thankful to Mr. Sanjay Jha that he's speaking the truth. For a change, they are not indulging in diversionary tactic and making statements which are contrary to their action. This is exactly the plan. This is the plan that create third front. This party is nothing but a diversion to their own misdeeds, and it is in this context they are hoping against hope. Let there be a third front which gets support of the Congress party so that all these scams can be buried. हाँ नहीं, मैं तो ये तो देखिए, ये तो असली चेहरा, अब वो आप हटाएं तो वो 10 जनपद का चेहरा दिखाई देता है, वो दिखने लगा है। और कहीं ना कहीं जो मैंने पहले ही शुरू में कहा कि एक गैर संवैधानिक एनजीओ है जिसका नाम नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, ये सब उसी स्कूल से निकले हुए बच्चे हैं, तो उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो विषय आपने बताया, अगर थोड़ा सा मैं इसमें अधिक समय लूंगी, अगर आप उसकी पिछली प्रक्रिया में जाएंगे तो आपको जो मैं कह रही हूँ वो बात ठीक लगेगी। और जो मैंने एक टीवी चैनल को उस पर इंटरव्यू भी दिया था, और वो अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है। उस समय बहुत लोगों ने मेरे को उस पर तिरस्कारा था, लेकिन वो 3 महीने के अंदर एक एक बात उसमें सच हुई थी। और उसमें यही बोला था मैंने कि भाई आप इन लोगों को पहचानिए, ये कौन लोग हैं। और 2011 में अप्रैल में सबसे पहले काला धन का विषय जो है वो गोविंदाचार्य जी ने उठाया। 2009 में वो विषय LK आडवाणी जी भी उठा चुके थे। 26 का ये हादसा है। 29 या 30 को आडवाणी जी ने वापस इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सब जगह उस मामले को कवरेज मिली। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बना कि भ्रष्टाचार, काला धन, साथ ही जो मूल्य वृद्धि है जिसके रहते पूरा देश जो है लचर व्यवस्था की तरफ जा रहा है। हमारे महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने लगातार पदयात्राओं से लेकर तमाम काम किया, पूरे देश भर में माहौल बनाया। अक्टूबर के महीने तक उसमें जो है योगी जी वो जुड़ गए, बाबा रामदेव, और जब वो काला धन लाओ देश बचाओ के नारे लगने लगे और जीपें उनकी घूमने लगी तो माहौल बन गया। दिसंबर तक ये लोग जो साइड में बैठे थे, ये सबसे बेहतर मौका है। और आप देखिए कि काला धन वापस लाओ, जो कि आपकी जीडीपी से भी अधिक है उसकी मात्रा, को भ्रष्टाचार के विरुद्ध मूवमेंट में तब्दील किया गया। और जब उसको भ्रष्टाचार के विरुद्ध मूवमेंट में तब्दील किया गया, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति जो काला धन की उपज ही भ्रष्टाचार के कारण है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं काले धन के को वापस लाने के पक्ष में हूं, लेकिन भ्रष्टाचार से मेरा कोई मैंने मन नहीं मोया, मेरे को भ्रष्टाचार ठीक लगता। तो जाहिर सी बात है कि हम भ्रष्टाचार के भी खिलाफ हैं। तो जब ये मूवमेंट चला इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तब तय हुआ कि भाई हमें इसमें कोई भगवाधारी नहीं चाहिए, बल्कि सफेद पोश चाहिए। तो अन्ना जी को लाया गया और पूरे मूवमेंट को, जो कि काला धन के विरोध में था, जो पूरा मूवमेंट फिर भ्रष्टाचार के विरोध में तब्दील हुआ, उसको मात्र जन लोकपाल पे लाके खड़ा कर दिया। और कुछ ही महीने के अंतराल में, 2 या 3 महीने के अंतराल में, उसको जन लोकपाल से हटाकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे जो जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसकी रसीदें एक एनजीओ द्वारा काटी गई थी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी की एनजीओ है, और उसको लेके मसला चला और नई पार्टी का जन्म हुआ। और उसी दौरान अरब स्प्रिंग और तमाम चीजें सब जगह हो रही थी और F-16 की डील हिंदुस्तान में भी खारिज हुई थी। Sir, I am trying to say that when you talk about
various aspects. All I'm saying is these details need to be gone into. These things need to be investigated. Who's connected where? But we have seen their agenda so far as their alliance with somebody called Taqir Raza is concerned. We have seen how they acted in down south with Jamaat and others. Now, I as a party in the opposition can only demand what government should do. But what has government been doing all this while? These are the information which should be available with Intelligence Bureau to whoever. Why has no action been taken? That is my point. बहुत बहुत Thank धन्यवाद. you. Thank you very much.